Hello students, today we are going to start our next chapter, the triangles and its properties, that is chapter number 6 of class 7. So let's start from the introduction. Before starting the chapter name is triangles and its properties. So we will discuss about the triangle and its properties. Before starting the properties, let's learn about the triangle. What is triangle? So triangle is a closed figure, right, with three sides. These are called sides. If this is a triangle ABC, right, so I need sides here. First of all, sides. There are sides in triangle, then angles are there, and vertices, right? With these three things, a triangle is complete. So sides, this is a side, so this is side AB, right? Symbol of line, side AB, so side BC and side CA, right? Next we have angles. So these are the angles which formed by two angles, right? So these are angles. So here is angle A, angle B, angle C. This is short form to calculate or to measure the angle B. What we have to write? A, B, C. A, B, C. So this is the angle in between, right? A, B, C. So this is angle B only. We will talk about the middle angle, that is the angle we are talking about, right? That means ए बी सी लिख तो रहे हैं, लेकिन जो मिडल वाला एंगल होता है वही होता है। तो एंगल ए इसको नहीं काउंट करते जो हमने मिड में रख रखा है, एंगल बी। सिमिलरली ए सी बी, सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी, मिडल एंगल। एंगल ए सी बी, बी इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, नो इशू। नाउ एंगल ए मिडल में रखना है। अब सी इधर करो चाहे बी इधर करो, नो इशू, राइट? सो दीज आर द एंगल्स। नाउ वर्टिसेस, व्हाट इज वर्टिसेस? वर्टेक्स मीन्स ये 3 पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करके हमारे पास ट्रायंगल बनी है। सो वर्टिसेस आर this. So these are the 3 things to create a triangle, right? Now you know how to classify triangles based on the sides and angles. अब देखो, जब साइड्स आपको ट्रायंगल्स पता है, हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये साइड्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, राइट? और जो एंगल्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड राइट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स greater than 90 degree, and right angle means proper 90 degree angle, right? So these are based on angles and sides. Scalene means 3 sides are different. If we have a triangle, these 3 sides will be different, then it is called scalene. Then isosceles means 2 sides are equal, and equilateral triangle means all the 3 sides of a triangle equal, that is equilateral triangle, right? So these are the types of the triangle. Next we have median of a triangle. What is median?
So median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side, that is called median. इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं. ये मेरे पास ट्रायंगल है. अगर मैं इस वर्टेक्स से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, मीडियन विथ मिड पॉइंट, मीडियन ड्रॉ करूँ, तो ये इस लाइन पे एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट लाइन पे ड्रॉ हो रहा है. यही मैंने अभी लाइन बोली, राइट. और ये जो मीडियन है इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट मीन्स यहाँ अगर मैं डी ले लूँ तो ये बी डी और इस डी सी की लेंथ जो होगी बोथ विल बी इक्वल. ये लेंथ्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. ये मीडियन हम किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं. अभी मैंने ए से करी है, ए, this is B and this is C. So now we can draw also from the B. So now AD equals to DC, right? Similarly we can draw from the C. In next figure we can see we can draw from the C also, like this. This will be the middle point if median is there. So this is called median, which वर्टेक्स से यहाँ ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करते हैं और ये उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है. सो दिस इज कॉल्ड मीडियन. नेक्स्ट वी हैव एल्टीट्यूड. व्हाट इज एल्टीट्यूड? अभी एल्टीट्यूड इज सेम लाइक मीडियन, बट इसमें होता क्या है? ट्रायंगल होगी ऐसे, तो इसमें भी वर्टेक्स से ये ड्रॉ कर देंगे हम, राइट. अब यहाँ पे ये मान लो डी हो गया, ये मेरा ए हो गया और ये बी, ये सी. ट्रायंगल में ये पर हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया. एल्टीट्यूड मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, विच मेक 90 डिग्री एंगल, राइट. अब यहाँ 90 डिग्री का एंगल, ये एल्टीट्यूड हो गया. लेकिन ये मीडियन नहीं है, बिकॉज ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है. तो मीडियन इसका वो होगा, जैसे अब ये अगर मैं देखूँ तो ये मेरे को इक्वल पार्ट्स में लग रहा है कि हाँ ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. इसको मैं ले रही. तो ए एम इज़ द मीडियन बट ए डी इज़ नॉट द मीडियन. दिस इज़ द परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, राइट. 90 डिग्री एंगल, हाइट दे रखी है उसकी, मीडियन नहीं दे रखा. सो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. ये भी हम तीनों साइड से ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे अभी एक सीधी सी ट्रायंगल लूँगी तो उसमें मीडियन मेरा एल्टीट्यूड हो सकता है. जैसे ये हो सकता है कि ये एल्टीट्यूड ही उसको, जैसे ये अब 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है. यहाँ पे ये मैं देखूँ तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये मीडियन नहीं है. तो ये स्ट्रेट लाइन तो मेरा एल्टीट्यूड भी हो गया और ये मेरा मीडियन भी हो गया. मीडियन तब होगा अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगी, है ना, तभी हम लोग मिड कर पाएंगे उसका. या फिर सिंपल ट्रायंगल में भी अगर उसने बोल रखा है कि ये मीडियन है तो मीडियन हो जाएगा. अदरवाइज़ यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है. अगर मान लो ये उसने दे ही रखा हो आपको लेंथ कि ये मीडियन ड्रॉ हो गया, या फिर उसने आपको ये आइसोसेलेस दे रखी है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल में मीडियन ही हमारा क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है, राइट. सो दिस इज द एल्टीट्यूड. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 6.1. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. डी मिड पॉइंट है क्यू आर का, राइट. तो कहता पी एम क्या होगा? व्हाट इज पी एम? अभी हमने करा, मैंने आपको इस ट्रायंगल में ड्रॉ करके बताया था कि अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा. तो फर्स्ट मेरा क्या होगा? पी एम इज एल्टीट्यूड, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. पी एम इज एल्टीट्यूड. एंड व्हाट इज पी डी? सो पी डी, क्योंकि डी उसने क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है किसका? क्यू आर का. दैट मीन्स मिड पॉइंट है, तो ये अब इस लाइन को आप हाइड कर सकते हो यहाँ से.
इस लाइन को अगर हाइड कर दें तो ये मीडियन हो गया, तो क्यू डी इक्वल हो जाएगा किसके, डी आर के, राइट। क्यू डी इक्वल होगा डी आर के, क्योंकि ये मिड है, तो दिस इज कॉल्ड द मीडियन. सो यू विल राइट हियर पी डी इज द मीडियन. नाउ नेक्स्ट थर्ड इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर. कहता इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर. नो, बिकॉज दिस इज नॉट द मीडियन. मीडियन इज PT. So QD equals to DR, but not QM equals to MR. So answer will no. समझ गए हो ना. D यहाँ पे है तो ये हाइड करके देखो, तो QD DR के इक्वल होगा, क्योंकि D मिड है इसका, M मिड नहीं है, तो ये साइड इसके इक्वल कैसे हो सकती है. अब कोई इतनी सी मैं आपको वायर दे दूँ और इतनी सी वायर दे दूँ और आपको बोलूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग. सिमिलरली हेयर वी विल राइट नो. ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. कहता आप रफ स्केच ड्रॉ करो, आपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं. इन ट्रायंगल ABC BE इज द मीडियन, राइट. तो ट्रायंगल ABC, पहले तो एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC. अब कहता है BE इज द मीडियन, दैट मीन्स BE बोल रहा है, मतलब B से ड्रॉ होगा, तो here we will write E. So BE is the median here. This is the first part. Now see next one. अब BE बोला है तो BE से बनाए, अगर AE बोलता है तो A से बनाते, अगर CE बोलता है तो C से बनाते, राइट. नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल PQ एंड PR एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल. अब एक ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड्स बोल रहे हैं, PQR में PQ एंड PR. ट्रायंगल है PQR और एल्टीट्यूड्स PQ एंड PR, ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं. अब इसका मतलब ये PQ और PR मेरी स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइंस तो एक ही पोजीशन में बनती हैं इसमें. अगर मैं ये ले लूँ, ये PQ है और ये QR है, यहाँ बनेगा. अगर मैं ऐसे देखूंगी तो इधर 90 का एंगल बन रहा है, इधर देखूंगी तो इधर 90 का एंगल बन रहा है, और इनको क्या कर देंगे, जॉइन. सो दिस इज PQ QR. तो ये तो मेरे हो, ये यहाँ आ गया क्योंकि लाइन रेज कर दी थोड़ी सी, तो ये हमारे हो गए एल्टीट्यूड. ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री, ऐसे स्ट्रेट बन रहा है. अगर इसको ऐसे देखते हैं तो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट C पार्ट, XYZ ट्रायंगल XYZ, बट YL इज एन एल्टीट्यूड. अब उसमें Y से बनाना है एक L एल्टीट्यूड, बट एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उस ट्रायंगल से बाहर बन रहा हो एल्टीट्यूड, मतलब सिर्फ ट्रायंगल की हाइट दिखानी है. ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल में ही बनेगा, वो बाहर भी बन सकता है. कैसे बनेगा. थर्ड पार्ट, उसने बोला XYZ, तो मैं अगर ट्रायंगल आपको ऐसे बना दूँ, अगर मैं Y यहाँ लिखूँगी ना तो ये एल्टीट्यूड ट्रायंगल में ही आ जाएगा. उसने बोला ट्रायंगल से बाहर होनी चाहिए ये हाइट, क्योंकि मेरे को तो यही देखना है कि ये हाइट कितनी है. तो मैं यहाँ X लिख रही हूँ, आप यहाँ पे भी Y लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ Z लिख दिया. अब मैंने यहाँ Y लिख दिया क्योंकि अब YL बनाना है, मतलब हाइट बतानी थी, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ लगा देंगे और ये इधर को कर दो, तो ये क्या हो गया मेरा, एक परपेंडिकुलर. उसने बोला था YL, तो इसको लिख दिया हमने L. दिस इज़ द थर्ड पार्ट, राइट. इसको ऐसे भी बना सकते थे, और मैंने अभी आपको बताया कि इस साइड भी आप बना सकते थे, Y ऊपर भी लिख सकते थे, मतलब Y इसकी जगह नहीं लिख सकते क्योंकि ये अंदर ही बन जाता है एल्टीट्यूड. इसको चेंज कर देती हूँ आपके लिए मैं थोड़ा सा. मान लो ये मेरा ट्रायंगल दे दी, X यहीं रख लेते हैं, Y इस साइड हो गया, Z इस साइड हो गया मेरा, ठीक है. अब भी YL ड्रॉ करना है, तो हाइट यहाँ आ जाएगी आपकी ऐसे. तो अभी ये एल्टीट्यूड यहाँ भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो YL. Y से बोला था मैंने, इधर ड्रॉ कर दिया, राइट. ये भी हमारा एल्टीट्यूड हो गया.
ये हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को दो तरीके से कर दिया। ट्रायंगल वाई जेड ऊपर भी कर सकते हो, फिर वो नीचे ड्रॉ हो जाएगा एल, राइट। नेक्स्ट देखो, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। मैंने अभी आपको पीछे थर्ड क्वेश्चन उसमें बताया था कि वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करोगे, एक काम करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, आइसोसेलेस और ठीक है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंपास में पेंसिल लगाओ, कंपास लेके पेंसिल लगा के उसमें एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ पहले स्केल के साथ, राइट। 6 सेंटीमीटर की साइड लेके पेंसिल कंपास में फिट करो, अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करो, कंपास का टिप यहाँ पे ऐसे रख के एक आर्क लगानी है, सो आर्क लगा लो, राइट। फिर सिमिलरली यहाँ पे रख के कंपास की टिप फिर से पेंसिल को ऐसे इस साइड पे 6 सेंटीमीटर जितनी खुली हुई है उसी के साथ एक राउंड कर लो, राइट। फिर आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा कि वो कट हो जाएंगे, फिर आप स्केल से इनको ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे ये कट हो रही है, राइट। ये हमने ऐसे, फिर ये आप यहाँ तक ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद इस लाइन से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा लो, राइट। उसके बाद इसको और इसको मेज़र करके देखो, यहाँ तक ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो। फिर देखो बी डी कितना आ रहा है और डी सी कितना आ रहा है, तो ये भी 3 होगा आपके पास, ये भी 3 होगा, तो ये 3, अगर तो ये हाफ में डिवाइड हो गया तो वेरीफाइड, अगर नहीं हुआ दैट मीन्स हमने ही कहीं पे गलती करी, आपका वेरीफाई होगा ही होगा क्योंकि उसने बोला। वैसे भी मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। सेम इक्विलेटरल में जब आप ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ही आपका क्या होगा, मीडियन होगा, राइट। सो दिस इज द एक्सरसाइज 6.1. If any confusion then you can tell me, I will clear your doubts, right. So in next lecture we will do our next exercise 6.2. Thank you.